پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ مسیحا کے بیش قیمت لہو سے خریدے ہوئے میرے مقدس بھائیوں، بہنوں اور ہم خدمت ساتھیوں، آج پھر اپنے لیے باعث فخر اور اعزاز سمجھتے ہوئے کہ خدا نے مجھے پھر سے یہ موقع دیا کہ آپ کے ساتھ آن لائن ہم رفاقت ہو کر خدا کے کلام کو سیکھ سکوں، اس بات کے لیے شکر کرتے ہوئے آپ سبوں کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں۔ وقت ہے کہ ہم اپنے کانوں کو کھولیں، اپنے ذہنوں کو تیار کریں اور اپنے دلوں کو کہ خدا کا کلام ہمارے دلوں میں بس رس جائے۔ ہماری اسکائپ آئی ڈی follow.jesus7 پر جتنی بھی خداوند کی ستائش اور پرستش کی گئی، خوبصورت انداز سے میٹنگ پریزائیڈ کی گئی، دعائیں کی گئی ہیں، عزیزوں میں آپ سب کا نام بنام ممنون ہوں، اور دعا ہے کہ خداوند آپ کو اس کے عوض دوگنی چوگنی برکت عنایت فرمائے۔ آج کے دن ہم عہد عتیق سے زبور کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس سے پہلے متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ 150 مزامیر 5 مختلف کتب پر منقسم ہیں۔ اس وقت ہم تیسری کتاب میں ہیں اور وہاں سے سیکھ رہے ہیں، اور زبور 75 کا آج ہم آغاز کریں گے، سام 75، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ خداوند آج پھر اس کلام کی گہری اور عمیق باتوں کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو برکت عنایت فرمائیں گے۔ اس زبور کا اگر عنوان یا ٹائٹل میں کوئی انتخاب کروں تو وہ یہ ہوگا کہ خدا پست کرنا اور سرفراز کرنا جانتا ہے۔ خدا پست کرنا اور سرفراز کرنا جانتا ہے، اور یہ اسی کے اختیار میں ہے کہ کب کسی کو سرفراز کرے اور کب کسی کو پست کرے، اور اس کے پیچھے بہت سی وجوہ ہوتی ہیں، سرفرازی کی بھی اور پستی کی بھی۔ آج آپ کی خدمت میں اس زبور کی پہلی 5 آیات پر بات کروں گا، لیکن یہ بھی بتاتا چلوں کہ زبور 74 کی طرح یہ زبور بھی آصف کے وسیلہ سے لکھا گیا۔ یاد ہو تو ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ آصف داؤد اور سلیمان کے وقت نہ صرف ایک میوزیشن اور شاعر، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ خدا کے گھر میں پرستش کرنے والوں کی رہنمائی کیا کرتا تھا۔ اور تواریخ کی پہلی کتاب اور 25 باب اور اس کی پہلی 2 آیات کے مطابق میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ بادشاہوں کے حضور ان کے آگے نبوت بھی کیا کرتا تھا۔ اس کا نبوتی رول اور نبوت کی نعمت بھی اس کے پاس تھی، کیونکہ یہاں اس زبور کے شروع میں لکھا ہوا ہے، میرے مغنی کے لیے التشخیت
के सुर पर आसफ का मजमूर यानी गीत। आसफ का जबूर और गीत मीर मुगन्नी के लिए। कई बार इससे पहले हम कह चुके हैं कि मीर मुगन्नी पॉसिबल है कि वो जो खास क्वायर्स का इंचार्ज हुआ होगा उसके लिए ये जबूर लिखा गया, लेकिन उसके लिए हो या ना हो, रब्बुल अफवाज के लिए जो मौसीकी का मुअज्जद है और पसंद करता है, उसके लिए यह जरूर लिखा गया, क्योंकि असल में मीर यानी मजलिस की रौनक, इबादत में मरकज निगाह अगर है तो खुदा है, इसीलिए वो प्रस्तश और स्ताइश के लायक है। और फिर लिखा है कि अल तशखीत के सुर पर। अंग्रेजी जबान में अल तशखीत का लफ्ज नहीं है, वहां पर इसके माना है, और वो माना यह है कि डू नॉट डिस्ट्रॉय, यानी तबाह ना कर या गर्क ना कर। और पॉसिबल है कि जब यह जबूर लिखा गया तो उस वक्त दुश्मनाने इसराइल, जो इसराइल के मुखालिफीन थे, उनसे कहा गया, उनके लिए कहा गया कि ए खुदा, मुमकिन हो कि हम इन इसराइल के दुश्मनान के जरिया से हलाक ना हों। और यह भी पॉसिबल है कि अल तशखीत कोई आलाए मौसीकी हुआ हो या मौसीकी की कोई धुन, सुर, टून, जिस पर यह जबूर लिखा गया और गाया भी गया। ये वो तारफी बातें थीं जो इस जबूर के ताल्लुक से थी। और मैंने कहा था कि जो तीसरी किताब है, इसके पहले 11 मज़ामीर आसफ नहीं रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखे हैं। ये हमारे लिए बड़े गहरे माना रखते हैं। जबूर 57 यानी 57, जबूर 58 यानी 58 और जबूर 59 में भी हम इसी तरह का टाइटल देखते हैं। लिहाजा हमें अब आगे बढ़ने की जरूरत है कि हमारे लिए क्या है। आयत नंबर 1, ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तेरा नाम नजदीक है। जब आसफ ये जबूर रूहुल कुद्स की तहरीक से लिख रहा था तो यूं लगता है कि वो पूरी जमात या कांग्रीगेशन के बिहाफ पर लिख रहा था खुदा के हुजूर। इसका सबब यह है कि जब आप इस पहली आयत की ग्रामर को देखें तो जो सीगा इस्तेमाल हुआ है वो सीगा जमा है। मसलन हम का सीगा इस्तेमाल हुआ है, यह किसी एक शख्स के लिए नहीं बल्कि जमात, मजलिस और कांग्रीगेशन के लिए यह लफ्ज मुस्तअमल है। तो क्या कहता है आसफ? ए खुदा, याहवे, अलोहीम, अदुनाई, हम यानी एज ए कांग्रीगेशन, एक जमात की सूरत में तेरा, ए खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं। और आप अंदाजा कीजिए कि जब
बनी इसराइल खुदा की हुजूरी में खुदा की तारीफ भी करते और खुदा की शुक्रगुजारी करते थे। तो इस वक्त तक खुदा ने माजी में इन लोगों को कितनी बरकत दी, कितनी बरकत दी, कितने मौजूजात इनकी जिंदगी में किए, खुदा ने कैसे बचाया, कैसे छुड़ाया, कैसे इनके लिए मुहैया किया, प्रोवाइड किया, कैसे साहिब जंग होकर इनके बिहाफ पर लड़ा। खुदा के बेशुमार उन पर एहसानात थे। अगर मैं उनका यहां पर बयान करूं कलील और मुख्तसर तौर पर, तो भी नीम घंटा तो इसी में लग जाएगा, वो भी कुछ बातें। लेकिन उन तमाम एहसानात के लिए जो खुदा ने इसराइल पर किए थे, आसफ पूरी कौम, पूरी नेशन के बिहाफ पर खुदा का शुक्र अदा करता है और वो कहता है, हम ए खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं। और इस आयत का जब दूसरा हिस्सा देखते हैं तो वहां पर भी वो कहता है, यानी पहला ए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, और फिर आगे हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तेरा नाम नजदीक है। सेकंड टाइम, वंस अगेन, एक बार फिर वो यही कहता है, ए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र हो ए खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और जब दुआ में, परस्तश में आप दुआ गो हैं तो आपको मालूम है कि बाज औकात पाक रूह यूं तहरीक देता है किसी एक लफ्ज या किसी एक बात को एक बार नहीं, 2 बार, 6 बार खुदा के हुजूर दोहराएं, ए खुदा हम पर रहम कर, रहम कर ए खुदा। ऐसा नहीं है? ऑफ कोर्स ऐसा ही है। और यहां आसफ खुदा का शुक्र अदा करता है पूरी जमात की तरफ से और कहता है, ए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं उन तमाम कामों के लिए, उन तमाम मौजूजात के लिए जो तू ने हमारी जिंदगी में किए हैं, उन तमाम अजीब कामों के लिए। क्योंकि आयत का आखिरी हिस्सा बताता है, तीसरा मिसरा, लोग तेरे अजीब कामों का जिक्र करते हैं इसलिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। कितनी खूबसूरत बात आसफ को लगी कि जब पूरी कांग्रेगेशन, पूरी जमात और खुदा के अजीब कामों का जिक्र करते और खुदा के नाम की तारीफ करते, कितनी बड़ी बात है। इसी हफ्ते में मैं और मेरे एक और भाई, हम किसी जगह गए और बाद इस इबादत जो टाइम गुजरा, वो टाइम इस मकसद के तौर पर नहीं गुजरा जिसका यहां पर जिक्र है कि लोग तेरे अजीब कामों का जिक्र करते हैं। नो। और हम बात कर रहे थे आपस में, मैं और मेरे भाई, कि काश के उस वक्त का फायदा उठाया जाता और इस मौजू पर बात की जाती, खुदा के कलाम को बुनियाद बनाते हुए किसी अहम बात पर, और इस बात पर कि खुदा ने हमारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। मुराद ये नहीं कि जो बाकी बातें हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन वो बातें ऐसी थीं जिनके कोई सर पांव नहीं थे, कोई सॉलिड बात नहीं। तो जब कभी मैं और आप, या आप जहां कहीं हैं, जब आप दूसरों के साथ बैठें, तो क्या ये
खूबसूरत बात नहीं कि गवाही दें कि मेरे खुदा ने मेरे लिए क्या क्या बड़े काम किए हैं। कामों दे हत्थां दे सबो जलाली, उन कामों का बयान हम कौमों और उम्मतों में कैसे करते हैं। सोचना है ना, हम दुख में हैं, हम परेशानी में होते हैं, आप भी होते हैं, मैं भी होता हूं। कभी बीमार हो जाते हैं, कभी प्रॉब्लम होती है, कभी दुख में होते हैं, शायद कभी लम लेट हो जाते हैं, कभी हिम्मत हार जाते हैं, कभी डिस्करेज हो जाते हैं। लेकिन ओ मेरे अजीजों, अगर इर्द गिर्द के लोगों को देखें तो आप हैरान होंगे कि लोग हमारी मुश्किल, हमारे दुख, हमारी तकलीफ से कहीं ज्यादा दुखों की खाई में और दलदल में धंस रहे हैं। जब हम दूसरों के दुखों और प्रॉब्लम्स को देखते हैं, खुदा का शुक्र करने के लिए दिल करता है। ए खुदा, इसलिए नहीं कि दूसरे दुख में है, इसलिए कि ए खुदा शुक्र हो आपके रहम और मोहब्बत के लिए कि मुझे और मेरे गिराने को, अगरचे ये चीदा चीदा मुश्किलात हैं, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी मोहब्बत से और अपने प्यार के आशा से और अपनी शफकत से हमें घेरे हुए हैं। क्या हम काइयों से बेहतर नहीं है? तो फिर क्यों ना हम खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने मेरे लिए क्या क्या किया। ये अहम तरीन सबक है इस बाइबल स्टडी में। अगर और कुछ भी ना सीखें, अगर यही सीखना शुरू कर दें, ऐ खुदा तेरा शुक्र हो, तो मैं सोचता हूं ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया वाले शायद इस बात को ना समझे, लेकिन खुदा के लोग इस बात को समझते हैं और समझेंगे भी। जब वो कहता है कि हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि लोग तेरे अजीब कामों का जिक्र करते हैं, और फिर वो कहता है क्योंकि तेरा नाम नजदीक है। और अंग्रेजी जुबान में तरतीब के एतबार से ये जो लफ्ज नजदीक है, ये पहली आयत के बिल्कुल एंड पर है, दैट योर नेम इज नियर। शुक्रगुजारी के बाद और उसके बाद खुदा के अजीब कामों का जिक्र करते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं और इससे पता चलता है कि तेरा नाम नजदीक है। सिमराद ए खुदा, तू हमारे बीच में है। हालेलुया। क्योंकि अगर तू हमारे बीच में है तो अजीब काम और मौजज़ात होते हैं, और अगर तू ही हमारे बीच में ना हो, देयर इज नो मिरेकल एंड नो साइंस एंड वंडर। ये खुदा की हजूरी के सबब से ही मुमकिन है। तेरा नाम नजदीक है, सिमरात खुदा हमारे बीच में है, खुदा हमारे दरमियान है, जो ये बड़े बड़े अजीब काम और मौजज़ात करता है। फिर हम खुदा के रहम, खुदा की शफकत, खुदा की मेहरबानी, खुदा की मोहब्बत, खुदा के अजीब कामों का जिक्र करने और शुक्रगुजारी करने के बाद जब आयत 2 पर पहुंचते हैं तो वहां पर लिखा है, जब मेरा मुअय्यन वक्त आएगा। मुअय्यन का मतलब है तयन किया हुआ, मुकर्रर शुदा, अपॉइंटेड टाइम। जब मेरा मुअय्यन वक्त आएगा तो मैं रास्ती से अदालत करूंगा। आयत 2 थी ये, जब मेरा मुअय्यन वक्त आएगा तो मैं रास्ती से अदालत करूंगा। आयत 1 में कौन बोल रहा था जी? क्या आप मेरे साथ हैं इस स्टडी में?
क्या आपने खुदा के कलाम को खोला हुआ है? क्या मैंने कहा था कि आयत 1 में कौन बोल रहा है और किसके बिहाफ पर? हाँ, आसफ बोल रहा है। पूरी जमात, पूरी कांग्रेगेशन, जो इबादत गो लोग थे, उनके बिहाफ पर खुदा के अजीब कामों का बयान और शुक्रगुजारी करता था। अब उसके जवाब में खुदा बोलता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, यह कितनी बड़ी और खूबसूरत और बाबरकत बात है कि जब हम बोलें इस ईमान, इस यकीन और इस एतकाद के साथ कि खुदा सुनता है, तो फिर हम खुदा के बोलने की आवाज भी सुने कि वो क्या फरमाता है। अब आयत 2 में खुदा बोल रहा है और वो कहता है, जब मेरा अपॉइंटेड यानी मुकर्रर करदा वक्त आएगा। खुदा जमात से मुखातब है, आसफ और फुल कांग्रेगेशन से, और वो कहता है जब मेरा मुअय्यन वक्त आएगा ना, मेरा मुकर्रर करदा अपॉइंटेड टाइम, ऑर्डेन्ड टाइम, तो फिर क्या होगा? तो मैं रास्ती से अदालत करूंगा। खुदा की अदालत में यानी इंसाफ करूंगा। खुदा की अदालत में स्याह को सफेद और सफेद को स्याह नहीं किया जा सकता। खुदा रास्ती से अदालत करता है। दुनिया की अदालतों में आप इंसाफ का शायद ही तसव्वुर करें, खा कौन सी ही अदालत क्यों ना हो, लेकिन जो रब की अदालत है वो एक ऐसी अदालत है जो रास्ती से होती है, और खुदा की अदालत पर, उसके अदल पर कोई शख्स तनकीद नहीं कर सकता कि खुदा ने जो किया है वो गलत किया है, क्योंकि खुदा की वोकैबुलरी में, उसकी शान और उसकी जाते अकदस में गलत नाम की कोई अपनी जात से ताल्लुक रखने वाली बात है ही नहीं। इसीलिए उसने यहां पर कहा कि मैं रास्ती से अदालत करूंगा, मेरा टाइम आएगा। और मैं अक्सर औकात ये बात कहता हूं कि जब हम खुदा की अदालत की बात करते हैं ना, तो खुदा अपनी अदालत में कभी जल्दी नहीं करता। सुन रहे हैं? जी कैम्बल मॉर्गन एक अजीम लीडर और मुफस्सर है, इस दुनिया से चला गया, बहुत पुराना, और उसने ये कहा खुदा अपनी अदालत में जल्दी नहीं करता और खुदा अपनी अदालत में कभी देर नहीं करता। समझ रहे हैं? पॉइंट पर पहुंच गए हैं कि खुदा अपने मुअय्यन वक्त पर, ठहराए हुए वक्त पर, ऑर्डेन्ड एंड अपॉइंटेड टाइम पर अदल करता है। वो टाइम कब होगा, ये खुदा ने अपने अख्तियार में रखा हुआ है। और आयत 3, जमीन और उसके सब बाशिंदे गुदाज हो गए हैं, गुदाज हो गए हैं। ये जो लफ्ज गुदाज है, अंग्रेजी जबान में इसके लिए लफ्ज डिजॉल्व
इस्तेमाल हुआ है। डिसॉल्व का माना है हटाना, मनसूख करना भी, या माजूल करना, इसके माना है। हम पाकिस्तानी अदालतों के खासकर असेंबलियों के बारे में हम सोचते हैं ओ जी असेंबली डिसॉल्व हो गई, ओ जी फलां डिसॉल्व हो गया, यानी रिमूव हो जाना, हट जाना, हटाया जाना। तो यहां लिखा है जमीन और उसके सब बाशिंदे गुदाज हो गए हैं। इसका क्या मतलब है कि जमीन और उसके सब बाशिंदे गुदाज हो गए, यानी खुदा की निगाह में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो खुदा के आगे पैर मार सके। सेकंड पार्ट भी पढ़ लूं, क्योंकि लिखा है मैंने उसके सतूनों को कायम कर दिया है। जमीन और उसके सब बशिंदे गुदाज हो गए, मैंने उसके सतूनों को कायम कर दिया है। इस पर बात करते हुए मैं यूं कहूंगा कि कभी कभी हम अक्सर औकात ये कहते हैं कि खुदा कभी भी ऐसा नहीं करता, खुदा ऐसा नहीं करता, या पता नहीं खुदा कब हमारी दुआ सुनेगा, खुदा ये नहीं करता, खुदा वो नहीं करता। ज़बूर की किताब में कई दफा हम देखते हैं, हबक्कूक की किताब में कई दफा देखते हैं, ये शरीर क्यों इस तरह से प्रॉस्पर होते, तरक्की पाते हैं। ऐ खुदा देख तो सही। मुकाशफा की किताब के 6 बाब में हम इस बात को देखते भी हैं। वहां आया है कि मज़बा के नीचे शुहदा की रूहें पुकार कर कहती हैं कि ऐ खुदा तू हमारे खून का बदला कब तक नहीं लेगा। हम अपने हालात पर कभी कभी कहते हैं खुदावन कब मुझे इस मुश्किल से निकालेगा, ऐ खुदा कब मैं इस इल्लत से, इस बीमारी से आजाद होऊंगा। बट खुदा ये कहता है इंतजार कर, वेट, क्योंकि मैंने अपनी अदालत के लिए एक वक्त ठहराया है, मुकर्रर किया हुआ है। और वो वाज़े तौर पर यह कहता है कि हटाना, माजूल करना और कायम रखना ये मेरे इख्तियार और मेरे कंट्रोल में है। मैं कायम रखता हूं और मैं माजूल भी करता और डिसॉल्व भी करता हूं। और इसके बाद इब्रानी ज़बान में एक लफ्ज लिखा है ब्रैकेट्स में, सलाह। अक्सर औकात इस लफ्ज पर हम बात करते चले आए, लेकिन कई लोग पूछते हैं कि यह सलाह का क्या मतलब है। और अगर आप पहली दफा हमारे साथ आज ऑनलाइन हैं तो इसके माना है वक्फा, थोड़ी देर के लिए ब्रेक। जब यह सलाह लफ्ज अदा किया जाता था, जमात का लीडर यह कहता था सलाह, तो कुछ वक्त के लिए पिन ड्रॉप साइलेंट, टोटली खामोशी हो जाती थी। और इस खामोशी के पीछे मकसद क्या था कि इंतहाई खामोशी और आजिज़ी में खुदा के किए गए कामों पर, खुदा के अदल पर, खुदा की रास्ती पर, जो कुछ उसने हमारे लिए किया है, थोड़ी देर के लिए सोचा जाए और उन कामों का खुदा के हुजूर शुक्र किया जाए। तो जब यह लफ्ज आता था तो जमायत यहां पर
खामोश होती थी कुछ वक्त के लिए। इससे पहले की जो बातें हो चुकी उन बातों पर वो सोचा करते थे। आयत 4 और 5 अगरचे 6 और 7 तो बहुत मारूफ है, लेकिन मैं 6 और 7 के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि टाइम इजाजत नहीं देता, लेकिन 4 और 5 पर जरूर बात करूंगा। आयत 4 में खुदा कलाम करता और वो कहता है, मैंने मगरूरों से कहा। इसका मतलब यह कि खुदा अच्छों और बुरों दोनों को नसीहत करता है कि बाज आ जाओ। अब खुदा बोलता है और वो कहता है, मैंने उन लोगों को जो घमंडी, फख्र करने वाले और गरूर करने वाले लोग हैं, मैंने उन लोगों से कहा गरूर ना करो, और शरीरों से कि सींग ऊंचा ना करो। मैंने मगरूरों से कहा कि गरूर ना करो, क्योंकि गरूर वो भारी पत्थर है जो आपको डबो देता है। गरूर और फख्र और घमंड के सबब से आसमान से जमीन पर पटक दिए जाते हैं। समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? गरूर और घमंड के सबब से साउल जैसे बादशाहों को माजूल, डिजॉल्व किया जाता है, और गरूर के सबब से बादशाह कीड़े पड़कर मर जाते हैं, और गरूर के सबब से वो अपनी तलवार पर खुद गिरकर और अपने तख्त पर खुद खत्म हो जाते हैं। इस गरूर और घमंड का आए हम अपनी जिंदगी में मुहासबा करें और इसका चारा करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा मगरूर का मुकाबला करता है लेकिन फरोतनों को तौफीक बख्शता है। मुबारक औसे दा हाल जानो, यहोवा उत्ते भरोसा जिसदा, घमंडियां को लोड़ नहीं जांदा, ना झूठियां नाल रखदा यारी। और फिर कहा, मैंने मगरूरों से कहा बाज आ जाओ, बस करो, अब स्टॉप, गरूर न करो। और शरीरों से, शरीर का लफ्ज दर हकीकत शर से निकला है, अरबी जबान का लफ्ज है। शर के माना बदी के, और जो शर करता है वो शरीर है, और इनके काम को हम शरारत कहते हैं। शरीर शरारत करता है। ओके, मैंने शरीरों से कहा कि सींग ऊंचा ना करो। हर जमाने में सींग ताकत और कुव्वत को पेश करता रहा और करता है। तो इसका मतलब यह कि जब शरीर अपनी शरारत में अपने आप के बारे में कहे, बढ़िया फाड़ा मारे, मैं ऐ हगा, मैं ओ हगा, खुदा कहता है ना 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 ना, अपना सींग ऊंचा ना कर, ना कर, क्योंकि पेने की आर पर पांव मारना आसान नहीं है, चिर जाएगा, बुरी तरह घायल होगा। गर्दन कशी से गर्दन कशी से बात ना करो, यानी अकड़ कर कोई बात करना खुदा के हुजूर दूसरों के साथ भी तकिया कलाम मैं इंज कर दिया गावे, ना ना ना, तो कुछ भी नहीं कर सकता। खुदा सब कुछ कर सकता है। खुदा ने कहा अपना सींग ऊंचा न कर, गुरूर न कर। और छठी आयत,
मेरे ख्याल में यहां हम रुकते हैं, क्योंकि अगली आयत इस बात को खोलेंगी और ज्यादा, ताकि बेहतर तौर पर जाना जा सके। हम 5वीं आयत में भी इस बात को देखते हैं, अपना सींग ऊंचा न करो। 2 बार यह लफ्ज आया है, 4 आयत के आखिर पर भी और 5 के शुरू में भी, अपना सींग ऊंचा न करो। और 5 के दूसरे हिस्से में गर्दन कशी से गर्दन कशी से बात न करो। गर्दन कशी से मराद यह है अक्कड़ कर, कि अपनी अक्कड़ में अपनी अना को, अपनी चौधराहट को मलहूजे खातर रखते हुए बात ना करो। यह खुदा की तरफ से ऐसे लोगों को नसीहत है। लेकिन हरफ आखिर के तौर पर आज मैं और आप अपने आप के बारे में सोचें, क्या इन 5 आयात में मेरे लिए और आपके लिए कोई मैसेज है? क्या खुदा ने आज आपसे और मुझसे कोई खास बात की है? क्या आपका ध्यान खुदा के कलाम की तरफ था? खुदा को निरा बुत नहीं चाहिए, रूह भी, ताकि हम इन बातों पर गौर करें। खुदा के कामों का जो उसने हमारी जिंदगी में किए, हम उसका शुक्र अदा करें। नंबर 2, जो उसने हमारी जिंदगी में काम किए हैं, अजीब काम, उनका दूसरों से जिक्र करें। नंबर 3, महसूस करें जब दुआ में बैठते हैं या जहां कहीं हम हैं अपनी जिंदगी में, कि खुदा यहां मौजूद है। खुदा की मौजूदगी के लिए ऐसा माहौल चाहिए जहां कोई गंदगी ना हो। स्पिरिचुअल आलूदगी की मैं बात करता हूं। और चौथे नंबर पर यह कि हम इस बात को समझें और जानें कि खुदा की अदालत रास्त है। वो अपनी अदालत में जल्दी भी नहीं करता और देर भी नहीं करता। और 5वीं बात यह कि हम हर हाल में इस बात को जानें कि खुदा अपनी अदालत मुअय्यन वक्त पर करता है। इसलिए हम किसी भी बात पर गुरूर ना करें, क्योंकि कुछ भी हमारा अपना नहीं, सब ऊपर से दिया हुआ है। हम गर्दनकोश ना हो, हम घमंडी ना हो, निरियां बड़का मारन वाले ना हो। सराही सर नगू होकर भरा करती है पैमाना, ते सदा नेविया रुखानो फल लगदा। आए हम अपने आप को फुरोतन और हलीम बनाए, ताकि खुदा की बरकत के हम वारिस हो सकें। आसमानी पिता, ममनून है आपके कलाम की खूबसूरत बातों के लिए। इन बातों को हमें अपने दिल में रखने का फजल अनायत फरमाए और मुमकिन करें कि जो आज हमने सीखा है उस पर गौरो खोज करने वाले और उसकी जगाली करने वाले हो। खुदावन मुमकिन फरमाइए कि हम आपके मोजज़ात और अजीब कामों का दूसरों से तज़किरा करने वाले हो। और हम में से वो जो आज भी आपकी तरफ से किसी मोजज़े के तालिब हैं, खुदावन मिन्नत करता हूं कि अपने कुदरत वाले नाम में उनकी जिंदगी में जैसी भी उनकी जरूरत है, आप जानते हैं, मैं नहीं, मोजज़ा कीजिए, ताकि आपका पवित्र नाम आपके लोगों के वसीला से जलाल पाए। हम सबों को बरकत दीजिए। हमारे खानदानों में ऐसा माहौल हो जहां आपकी हजूरी हो। सुनिए हमारी दुआ को और कबूल कीजिए। अल मसीह के मुबारक और खूबसूरत तरीन नाम के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे जब खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।